Now my voice is clear. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. So today we are starting Indian economy. The first chapter is on the eve of independence. Indian economy on the eve of independence. In this chapter we just discuss about the condition of Indian economy during the British rule and before the British rule. As you know, in 17th century India is known as the golden bird. जब 17th century थी ब्रिटिश रूल से जस्ट पहले, उस समय इंडिया गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था बिकॉज इंडिया इज नोन एज द मेजर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड ही गेटिंग प्रीशियस स्टोन इन प्लेस ऑफ एक्सपोर्टिंग आइटम्स. इंडिया जो कुछ भी एक्सपोर्ट करता था उसके बदले में उसे प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे. दैट्स व्हाई दिस कंट्री इज नोन एज द गोल्डन बर्ड. बट ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज on behalf of interest of England, the Indian economy survived so many wars condition. बहुत ज़्यादा उसकी wars condition हो गई थी. The handicrafts are declined, where India was in number 1 in cotton and silk textile. During the British rule, the cotton and silk production also affected because of the policy of colonial rule. During the colonial rule, India converted into the exporter of raw material and the major consumer of finished goods, that is just coming from the industrial revolution of England. ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज जो थी उसके कारण जहां हम एक्सपोर्टर थे उसकी जगह अब हम क्या हो गए, इम्पोर्टर हो गए फिनिश गुड्स के, और हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करने लगे. सो दिस चैप्टर इज जस्ट बिलोंग्स टू द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. यहाँ पर हम देखेंगे particularly in the period when India was under the British rule which lasted from almost 2 centuries, लगभग 200 साल तक भारत पर ब्रिटिश रूल रहा. India finally won its independence on 15th August 1947. The sole purpose of British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supply for the Great Britain. जितनी भी जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, जो कॉलोनिकल रूल था, वो इसी बात पर डिपेंड था. दे वांट टू कन्वर्टेड दिस कॉलोनी इनटू अ सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल. कि वो चाहते थे कि इंडिया जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया था किसमें, ही इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. वो रॉ मटेरियल के सप्लायर के रूप में कन्वर्टेड हो गया था. ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस. किस लिए हो गया था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हो चुकी थी. इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेस को बनाने के लिए इंडिया को कन्वर्टेड किया गया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. एंड अंडरस्टैंडिंग of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. ठीक है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, that time before the British rule India was a major exporter in the world. During the British rule the colonial rules just converted India into a supplier of raw material and a big consumer of finished good which was produced during the revolution of England, industrial revolution. तो इंडिया को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई कि वो रॉ मटेरियल को तो सप्लाई करे और फिनिश गुड्स को कंज्यूम करे. अब हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनिकल रूल. कि जो कॉलोनिकल रूल था उसमें हमारा डेवलपमेंट इतना कम क्यों हुआ. India had an independent economy before the advent of the British rule. Through agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by the various kind of manufacturing activities. Before the British rule, India is known as a manufacturing nation. बहुत बड़ा एक फैक्ट्री माना जाता था उसे, जिसमें प्रीशियस स्टोन आकर उस एक्सपोर्ट्स के बदले में हमें मिलते थे. इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया सबसे ज़्यादा जो अपना फेमस था दैट इज़ फेमस फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. क्योंकि ये मशीन मेड नहीं थे, ये क्या थे, हैंडीक्राफ्ट में आता था, तो बहुत ही बारीक काम वहाँ पर किया जाता था. सो दे आर फेमस
in the field of handicraft, basically on cotton and silk textile, metal and precious stones works, etc. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used. ठीक है, एक्सपोर्टर तो थे लेकिन हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी क्योंकि जो मटेरियल यूज किया था दैट इज द बेस्ड ऑन फाइन क्वालिटी एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप सीन इन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम द इंडिया. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें बहुत फाइन क्वालिटी का जो मटेरियल है वी आर जस्ट यूज्ड. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बात करते हैं. दैट टाइम बंगाल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. उस समय जो बांग्लादेश था वो भी इंडिया का एक पार्ट था. दैट टाइम मुस्लिम इज अ टाइप ऑफ सिल्क. उस समय एक सिल्क का टाइप था मुस्लिम के नाम से जिसे जाना जाता था. इट्स अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम बंगाल. ये कहाँ से है? बंगाल से है. पर्टिकुलरली प्लेस्ड इन द अराउंड ढाका. उस समय जो आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, दैट टाइम इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो ढाका जो प्लेस्ड है, जो बिफोर इंडिपेंडेंस इस तरह से जाना जाता था, नाउ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. तो उस समय जो ढाका की जो मुस्लिम थी दैट वाज फेमस वर्ल्ड वाइड, had gained worldwide fame as an expert type of cotton textile. The finest variety of muslin was called मलमल. जो मुस्लिम की फाइन जो वेराइटी थी उसे मलमल के नाम से जाना जाता था. Foreign travelers also used to refer its मलमल शाही एंड मलमल खास. यानी जो रॉयल पीपल होते थे वो इस मलमल को एक शाही सिंबल के रूप में यूज लेते थे. तो दिस एग्जाम्पल शोज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड मार्केट. कि ये बताता है कि वर्ल्ड मार्केट में इंडिया की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से एक बेस्ट क्वालिटी के रूप में मानी जाती थी. बट ड्यूरिंग द कॉलोनिकल पॉलिसी के कारण the colonial policy pressured the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their home country. लेकिन जो colonial rule था उसका main जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते थे. बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्ड इन इंग्लैंड, सो दे फाइंड आउट अ मार्केट वेयर they just supply their manufacturing goods and just find out a market where he just import the raw material from their side on a least prices. तो वो एक ऐसा मार्केट चाहते थे जहाँ से सस्ते दामों पर उन्हें रॉ मटेरियल मिल जाए और अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए रॉ मटेरियल के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सके. Then with the development of Indian economy, such policies brought out a fundamental change in the structure of Indian economy. और इन पॉलिसीज के कारण इंडियन इकोनॉमी का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर था दैट इज चेंज. कैसे चेंज हुआ? बिफोर द ब्रिटिश रूल इट वाज अ मेजर एक्सपोर्टर्स. वो एक्सपोर्टर थे. नाउ दे कन्वर्टेड इनटू इम्पोर्टर ऑफ कंज्यूम गुड्स. जो फिनिश गुड्स थी उनके वो अब एक्सपोर्टर नहीं थे, अब वो इम्पोर्टर हो गए थे. नाउ दे आर सप्लाइंग the raw material for the England revolution. अब वो जो structure था, now this structure will change, transforming the country into the supplier of raw material and consumer of finished good industries product from Britain. अब वो structure change हो गया, अब वो supplier हो गए raw material के. Yes? मैम सब चले गए तो हम जाएंगे स्कूल जाने के लिए, फिर लेट होंगे. हाँ ठीक है, you just quit. Okay? मैम सभी चले गए, कोई नहीं क्लास में. Okay बेटा, you just also. Observably, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. और ये कारण क्या था कि किसी ने भी कॉलोनिकल रूल के दौरान देश की नेशनल इनकम को मेजर करने का प्रयास नहीं किए गए. सम इंडियन इकोनॉमिस्ट, उस समय कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने first time they measure the national income. There are names as Dadabhai Naoroji was the first man who calculated India's national income. उनके अलावा विलियम्स दिग्बे, फिनले सेराज, V.K. R.V. Rao and
R.C. Desai. So these are the people Indians who just start their first efforts to calculate the national income. ठीक है, इससे पहले कहीं भी ब्रिटिश रूल के दौरान, कॉलोनिकल रूल में कहीं भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास नहीं किया गया. सो दीज आर द पीपल हु स्टार्टेड देयर फर्स्ट एफर्ट्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. ये वो लोग हैं जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास किया. It was Rao whose estimates during the colonial period was considered a very significant. तो राव जो थे इनमें से वो सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं क्योंकि कॉलोनिकल रूल में उनके द्वारा किए गए एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड माना गया. मोस्ट स्टडीज did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than of 2% coupled with a mere 0.5% growth in the per capita output per year. ये पहले लोग थे जिन्होंने नोटिस किया कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या हो रही है, दैट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. जैसे जैसे हम कॉलोनिकल पीरियड की इनहेल एरिया में चल रहे हैं तैसे तैसे हमारी जो नेशनल इनकम है दैट इज डिक्रीजिंग. अब नेशनल इनकम डिक्रीजिंग है, उसके लिए हम देखते हैं किस किस सेक्टर्स में. सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल साइड में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन दैट टाइम. उस समय भी जो ज़्यादातर लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही डिपेंड करते थे. इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनिकल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेशन. अबाउट द 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन द विलेजेस. उस समय when there was a colonial rule in India, 85% is living in the villages. वो उस समय villages में रह रहे थे and derived livelihood directly or indirectly from the agriculture side. और वो कहीं ना कहीं directly या indirectly रूप में वो agriculture से जुड़े हुए थे. Despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continue to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. यानी इसके बावजूद 85% पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. इतना ज़्यादा बेसमेंट होने के बाद भी जो इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन थी दैट इज स्टैग्नेंट, यानी उसमें कोई चेंजेस या कोई ग्रोथ नहीं थी. यहाँ पर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल. एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया से पहले एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी. द फ्रेंच ट्रैवलर्स एग्जाम्पल इनके रिटर्न जो हमें मिला है उसमें दिया गया है. बर्नियर डिस्क्राइब्ड 17th सेंचुरी बंगाल इन द फॉलोइंग वे. उन्होंने बंगाल को, जो फॉरेन ट्रैवलर, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया 17th सेंचुरी में बिफोर द ब्रिटिश रूल. द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड इन बंगाल इन 2 visits inclines me to believe that a richer than the Egypt. Its exports immense cotton and silk, rice, sugar and butter. ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इंडिया की कंपैरिजन इजिप्ट से की. उन्होंने कहा कि वो इजिप्ट से ज़्यादा धनी था और उस समय यहाँ पर सिल्क, कॉटन, राइस, इसका वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था. It produces amply for its own consumption wheat, vegetable, grain, fall, ducks, geese. It has immense herds of pigs and flocks of sheep and goats. Fish of every kind has been proportioned from Raj Mahal to be seen in an endless number of the canals cut in the Bygone age from the Ganges. एंड इमेंस लेबर फॉर द नेविगेशन एंड इरिगेशन. यानी उन्होंने जो एक पिक्चर जो उन्होंने डिक्लेयर की अपनी बुक के माध्यम से, उससे पता चल रहा है कि उस समय इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी थी. सो इंडिया वॉज नॉट इन अ बैड कंडीशन इन 17th सेंचुरी. वॉज द एग्रीकल्चर कंडीशन इज ऑल्सो डेवलपिंग. अगर हम देखते तो वी आर जस्ट इतना हम प्रोड्यूस कर देते थे कि हमारे लिए तो था ही कंजप्शन के लिए, एंड वी एक्सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स देयर. और इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी थी, यानी जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो उस समय बहुत अच्छी कंडीशन में थी. ये हमें बर्नियर के जो ट्रैवलर है उसके रिकॉर्ड से हमें इस बात का पता चलता है. बट ड्यूरिंग द जो हम देखते हैं ब्रिटिश रूल, उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई. तो क्या रीजंस उसके हैं,
agricultural productivity become low through in the absolute term the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under the cultivation. This stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various system of land settlement. ठीक है, अगर हम देखें कि why the condition of agriculture decline during the British rule, ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटिश रूल में जो इतनी फ्लोरिश कंडीशन थी वो इतनी डिक्लाइन क्यों हुई, तो इसका मेजर कारण क्या है, द सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट जो है. बिफोर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट हमारे यहाँ देयर वाज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एम्परर विद द सिटीजन्स. जो पीजेंट से दे डायरेक्टली पे टैक्सेस टू द किंग, वो राजा को डायरेक्टली पे करते थे. बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज अ जमींदारी सिस्टम. दे आर मीडिएटर बिटवीन द कॉलोनिकल emperors or the citizens or the farmers. So they are just against to getting the taxes. जो जमींदार थे उनका मतलब मकसद क्या था, सिर्फ वो टैक्स गेन करते थे. दे आर नथिंग डूइंग फॉर द बेटरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर कंडीशंस. उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना तो कॉलोनी ने, ना तो कंपनी ने कभी ध्यान दिया, ब्रिटिश कंपनी ने, कि हाउ दे जस्ट डू फॉर द बेटर कंडीशन फॉर द एग्रीकल्चर. और ना ही जमींदारों ने कभी अपने फार्मर्स और टेंडेंट्स का ध्यान रखा. उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू. उनका मकसद क्या था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना था. दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनिकल गवर्नमेंट particularly under the zamindari system which was implemented in the 10 Bengal presidency comprising part of India's present day eastern states. The profit occurring out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators. ठीक है, जो जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया उसका मेन मकसद क्या था, जो जितना भी प्रॉफिट था वो फार्मर्स को जाने की बजाय वो जमींदारों को जा रहा था. A considerable number of zamindars and just the colonial government didn't nothing to improve the condition of agriculture. और ना ही कॉलोनिकल गवर्नमेंट ने और ना ही जमींदारों ने कभी भी एग्रीकल्चर की कंडीशन को सुधारने की कोशिश की गई. The interest to the zamindar was only to collect the revenue. जमींदारों का जो इंटरेस्ट था वो किस में था, to collect the revenue regardless of the economic condition of cultivators. उन्हें कोई मतलब नहीं था कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है कल्टीवेटर्स की वो कैसी है. उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यू. उनका इंटरेस्ट जो था कि कंपनी को हमें सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा. This caused immense mercy and social tension among the latter. To a very great extent, the term of the revenue settlement was also responsible for the zamindars adopting such as attitude. Dates for depositing specified sum of amount were fixed. Even then उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अमाउंट और डेट भी फिक्स कर रखी थी. ऑन दैट डे यू हैव टू डिपॉजिट योर टैक्सेस. तो जमींदार थे, उन्होंने डेट और टाइम भी फिक्स कर रखा था. फेलिंग विच द जमींदार्स वर लूज देयर राइट्स. अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था. Beside this, low level of technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers all added up to the plights of the farmers and contributed to the dismal level of the agriculture. और ये वो कारण थे. सेटलमेंट तो एक कारण था ही, जमींदारी प्रथा एक कारण था. इसके अलावा क्योंकि नेग्लिजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, कोई फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं हो रहे थे, मॉडर्न टूल्स हमारे पास नहीं थे, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन नहीं था एग्रीकल्चर पे, किसी तरह की इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी. दैट्स वाई द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन. और यही कारण था कि एग्रीकल्चर की कंडीशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी. There was of course some evidence of a relative higher yield of cash crops in certain area of the country. हाँ, कुछ एरियाज में कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसे हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं.
बट दिस कुड हार्डली हेल्प द फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। लेकिन ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, इससे भी फार्मर्स की कंडीशन पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। इवन देन वो फूड ग्रेन्स क्रॉप्स जिसकी कमी हो गई थी उस समय, उसको उगाने की जगह वो क्या कर रहे थे, दे आर जस्ट कंसर्न ऑन टू द कैश क्रॉप्स which were to be ultimately used by the British industries back home। वो भी किस लिए किया गया था कैश क्रॉप पे ध्यान, ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल सके। Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage, and desalination of soil. While a small section of farmers changed their cropping pattern फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, और बहुत सारे फार्मर्स ने कॉलोनिकल रूल के कारण अपना जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया। अब वो फूड ग्रेन की जगह ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप्स को ज़्यादा वेटेज देने लगे। अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हैड टू इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। जो मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास इतना पैसा नहीं था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपना जितना भी जो रिसोर्सेज हैं उसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में लगा सके। तो ये सबसे बड़ी कमी जो ब्रिटिश रूल की रही वो यही रही कि ना तो कॉलोनिकल गवर्नमेंट ने और ना ही जमींदारों ने कभी भी एग्रीकल्चर के ग्रोथ पर ध्यान दिया गया। ना तो मॉडर्न वेपन्स और टूल्स थे उनके पास, ना दे आर यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स। इवन देन द ब्रिटिश रोल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रोल इरिगेशन फैसिलिटी में होना चाहिए वो भी नेग्लेक्शन पे था। जमींदार इवन सिर्फ दे आर जस्ट कलेक्टिंग द रेवेन्यू, उनका काम क्या था, वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे और कोई काम उनके द्वारा नहीं किया जाता था। नाउ द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। इसी तरह से हम इंडस्ट्रियल एरिया की कंडीशन देखेंगे कि एग्रीकल्चर की कंडीशन देखी हमने कि बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया स्टैंड्स ऑन द नंबर 1 इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉलिसीज। हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा था कि वी आर जस्ट अ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। बट ड्यूरिंग द जमींदारी प्रथा और द कॉलोनिकल रूल, ड्यू टू द नेग्लेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, the agriculture sector's production decline. Even then the government just do some efforts for the commercialization of agriculture, but these efforts are little bit. Now the farmers are concerned with the cash crop। अब वो commercial crop पे ज़्यादा ध्यान लेने लगे। इसी तरह से हम industrial sector का देखते हैं। In the case of agriculture, so also the manufacturing India could not develop a sound industrial based under the colonial rule। क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर है वो डिक्लाइन होने लगा, इसीलिए कॉलोनिकल रूल में हम इंडस्ट्रियल बेस भी तैयार नहीं कर पाए। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, इवन जो इसमें हम वर्ल्ड फेमस थे कॉटन सिल्क में, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। No corresponding modern industries based allows to come up to take pride of place as long enjoyed by the farmers। अब कोई भी ऐसी टेक्सटाइल या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं थी जिसपे प्राइड फील किया जा सके। The primary motive of the colonial government behind this policy of systematically deindustrialization of India was twofold। और ये जो तरीका था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, भारत के उद्योगों को खत्म करने का, वो दो कारणों से था। फर्स्ट, इन्वेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस इंडिया टू स्टेटस ऑफ मर्ज एक्सपोर्टर ऑफ द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। सबसे पहला जो मकसद था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो क्या था कि हमें अब एक्सपोर्टर बनाना है भारत को, किसका, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना है, ताकि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है उसके लिए रॉ मटेरियल मिल सके। एंड द सेकेंड थिंग, जो दूसरी चीज थी वो क्या थी, एंड द सेकेंड थिंग टू टर्न इंडिया इनटू अ स्पैवलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और हमारी इंडस्ट्रियल जो हमारी पॉलिसी थी, ब्रिटिश पॉलिसी, उसके दो फोल्ड थे। फर्स्ट फोल्ड क्या था, to convert India into a raw material exporter for the British Industrial Revolution, and the second fold
to convert India into a consumer, a big consumer of big market of finished good which is produced in British industrial area, कि जो ब्रिटिश के द्वारा रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है उससे जो वो चीज़ें बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट बनाना वो चाहते थे. Their home country, Britain, in the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India but also new demand in the Indian consumer market. ठीक है, इस पॉलिसी से सबसे बड़ी कमी क्या हुई कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट थी वो डिक्लाइन हुई, सो द अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड इन इंडिया. सेकेंड थिंग थी दैट वाज इंडिया वॉज एमर्ज एज अ लार्ज कंज्यूमर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स. अब इंडिया क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट से इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं उसकी डिमांड करने लगा, विच वॉज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स. इससे क्या हुआ कि जो लोकल गुड्स की थी उनकी सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगी. दिस डिमांड वर प्रॉफिटेबल मेट बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. ये डिमांड क्यों एमर्ज हुई, क्योंकि ब्रिटेन से जो इम्पोर्ट की जाती थी कंज्यूमर गुड्स वो बहुत सस्ती होती थी. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, modern industries began to take root in India, but its progress remained very slow. हालांकि 19th century में हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में भी धीरे धीरे इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, लेकिन उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी. इनिशियली this development was concerned with the setting of cotton and jute textile. हालांकि ये जो शुरुआत थी सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज में थी, जैसे कॉटन और जूट टेक्सटाइल स्टार्ट हुआ. The cotton textile mills, mainly dominated by the Indians, were located in the western part of the country. ज़्यादातर जो कंट्रीज की वेस्टर्न पार्ट है वहाँ ये इंडस्ट्री, जैसे गुजरात में हम देखते हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात, वहाँ पर ज़्यादा सर मेजर इंडस्ट्री डेवलप की गई. Mills dominated by the foreigners were mainly concerned in Bengal. और जो फॉरेनर्स के थ्रू लगाई गई थी वो ज़्यादातर कंसर्न कहाँ थी, बंगाल में थी. Subsequently, the iron and steel industries began coming up in beginning of the 20th century. और 20th century में iron steel company भी start हुई. Tesco is well known as Tata Iron and Steel Company was incorporated in 1907. सबसे पहले 1907 में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी was started. उसके बाद a few other industries in the field of sugar, cement, paper came in after the Second World War. और Second World War के बाद कुछ other industries भी start हुई. So these are the condition where India struggling. ये वो स्थितियाँ थी जहाँ इंडिया स्ट्रगल कर रहा है. Some Indian इंडस्ट्रीज ऑल्सो फ्लोरिश. वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल्स ने शुरुआत भी की, लेकिन इनका एरिया बहुत कम था. सिल्क और कॉटन के साथ साथ सीमेंट में, जूट में दे आर जस्ट स्टार्टिंग. वो अभी शुरुआत कर रहे थे. और फर्स्ट जो प्राइवेट कंपनी हम देख रहे हैं दैट वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसने अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हाउस स्टार्ट किया था. However, there was a hardly any capital good industry. और उस समय हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देयर वाज नॉट एग्जिस्ट. टू हेल्प प्रमोट द फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, यानी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो मशीन या टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कर रही थी ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो सके. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोवाइड मशीन्स, टूल्स which are in turn used for the producing articles for the current consumption. The establishment of a few manufacturing units here there was no substitute to nearby the wholesale. उस समय कोई भी कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी. ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी जो मशीनों का निर्माण कर सके ताकि इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ज़्यादा हो सके. So today we discuss about the condition of agriculture industrial sector during the British rule and before the British rule. So you just write some extra question. कुछ extra question लिखेंगे आप, लिखिए.
Why India is known as the golden bird in 17th century? Why India was known as golden bird in 17th century? सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ढाका मलमल. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ढाका's मलमल. थर्ड क्वेश्चन लिखिए, जमींदारी प्रथा, जमींदारी सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट introduced by the colonial government. Zamindari settlement introduced by the colonial government is the major cause for declining the position of agriculture. For declining the position of agriculture. Explain it. इसमें आपको बताना कि जमींदारी प्रथा से एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसे वर्स होती गई. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ टेस्को. TISCO. राइट द फुल फॉर्म ऑफ टेस्को. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन changed the economic structure of India. How British industrial revolution changed the structure of Indian economy. Okay, so आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपनी कॉपी में करेंगे. आज इतना ही करेंगे. Okay, have a nice day. Thank you.